Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, friends. Here you can see I have the Islamic Studies books of grade 7 by Maulvi Abdul Aziz Sheikh UAE MA English Literature book. So I have got this book from my school. So inshallah we will read it. If you want to read this, you can take a screenshot, or by pausing you can read this. And this also preference. Now let's turn our page. This is also preference, and here you can see this is our index. So inshallah in our first video we will inshallah cover this first lesson by videos, and videos we will like first video, first, second. So here are total 4 modules. So we will start from module 1 inshallah, lesson number 1, attributes of Allah, page number 7. Here you can see this is the page, and let me show you the back side of the book. Here you can see the address and the Gmail if you want to contact, and the price of this book is 300 rupees INR. So let's begin. Here you can see attributes of Allah. So let's begin our video. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. So there is no God but Allah, the ever-living, the sustainer of all that exists. Neither slumber nor sleeps nor overtakes him. To him belongs whatever is in the heavens and the earth. He is the most high and the most great. The disbelievers do not esteem Allah with the esteem that is due to him, and the whole earth will be but his handful on the day of resurrection, and the heavens will be folded up in his right hand. Glory be to him, and exalted is he above that which they associated with him. Az-Zumar 67. So I will translate you in the Hindi also inshallah. There is no God but Allah. मतलब कि अल्लाह के सिवा कोई और गॉड नहीं है. द एवर लिविंग, जो कभी मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता. द सस्टेनर ऑफ द ऑल एग्जिस्ट, सबका ओनर. नाइदर स्लम्बर नॉर स्लीप ओवरटेक्स हिम, मतलब नहीं अल्लाह को नींद आती है, नहीं थकान लगती है. जो भी दुनिया में और आसमान में है सब अल्लाह के है, जो कि सबसे ऊंचा और सबसे महान है. द डिसबिलीवर, जो लोग काफिर है, वो अल्लाह को नहीं मानते कि जो अल्लाह ने उनको पैदा किया, लेकिन जो पूरी दुनिया है वो अल्लाह के हाथ में है. डे ऑफ रिजरेक्शन एंड हेवन विल बी फोल्डेड इन द राइट हैंड. ग्लोरी टू हिम एंड एक्सॉल्टेड ही इज अबव विद द एसोसिएटेड हिम, वो उनसे ऊपर है. His knowledge is all inclusive and his power is limitless. He is the creator. He created the heavens and the earth in 6 days. He makes the night cover the day, which pursues it swiftly. He also created the sun and the moon and the stars, all governed by the laws under his command. अल्लाह ताला की जो नॉलेज है और जो इंक्लूसिव है, मतलब जितने भी चीज़ें सब लिमिटलेस है, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी है. वो हमारा क्रिएटर है, उन्होंने हमको बनाया अल्लाह ने. ही क्रिएटेड द हेवन्स एंड द अर्थ इन 6 days. अल्लाह ने आसमान और जो अर्थ है अपनी, उसको अल्लाह ताला ने 6 दिन में बनाया. ही मेक द नाइट कवर द डे, अल्लाह रात बनाता है और दिन को ढकता है. विच परस्यूज इज स्विफ्टली. ही ऑल्सो क्रिएटेड द सन एंड द मून एंड द स्टार्स. अल्लाह ताला वही है जिसने सूरज को भी बनाया, चांद को भी बनाया और तारों को भी बनाया. ये सब जो है अल्लाह के लॉज और उनके कमांड्स के अंदर है. तो चलिए अभी अपना पेज टर्न करते हैं. He alone is to be praised because he is alone and is the Lord of the worlds. He created the entire universe according to the proper order and a wise plan. He brought forth an heavenly domain and beautified it with stars and created man in the best form. अल्लाह अकेला है जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया और दुनिया का रब है वो.
ही क्रिएटेड इन द यूनिवर्स, अल्लाह ताला ने पूरी यूनिवर्स को बनाए अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर ऑर्डर, मतलब कि एकदम पूरा प्रॉपर प्लान के अंदर ये सब है. ही ब्रॉट फोर्थ एन हेवनली डोमेन एंड ब्यूटिफाइड इट विथ स्टार्स एंड क्रिएटेड मैन. अल्लाह ताला ने हेवन आसमान बनाए एंड ब्यूटिफाइड इट विथ स्टार्स, और उसको तारों से डेकोरेट करे. एंड ही क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट फॉर्म, अल्लाह ताला ने इंसानों को सबसे बेस्ट उसमें बनाए फॉर्म में. द क्रिएशन एज एविडेंस फॉर अल्लाह, द प्रूफ दैट अल्लाह अलोन इज वर्दी ऑफ वर्शिप इज दैट ही इज द वन हु क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ and all that is in them between them. Therefore, he who created them without any partner he should be only one to be worshipped. ये प्रूफ है कि अल्लाह अकेला इबादत के लायक है, क्योंकि उन्होंने ही आसमान को और दुनिया को बनाए. एंड दैट इज़ इन द देम बिटवीन एंड देम, वो उनके बीच में, अल्लाह ताला के बीच में और उनके बीच में है. Therefore, he who created them with any partner should be only the one who worshipped. अल्लाह ताला ने इंसानों को, पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बिना कोई पार्टनर के बनाए, तो इसके लिए खाली अल्लाह की इबादत करी जानी चाहिए. Truly, in the creation of the heavens and the earth, and in the alternation of night and day, and in the ships which sail in the sea with that which profits people, and in the water which Allah sends down from the sky, and in the change of the winds and the cloud pressed into the service between the heavens and the earth, are indeed signs for people who understand. सूरह अल-बकरा आयत नंबर 164. द प्रूफ, ये तो हो गया. सच में जो अल्लाह ने बनाया दुनिया और आसमान और दिन और रात का ये जो निज़ाम है, रूटीन है, और शिप्स विच सेल एट द सी विच प्रॉफिट पीपल्स, जो अल्लाह ने जो जहाज़ रहते हैं ना, समुद्री जहाज़, शिप्स, तो अल्लाह ने उनको बनाया जो कि पानी पर चल सके और वो लोगों को प्रॉफिट पहुँचाए. एंड वाटर विच अल्लाह सेंड डाउन फ्रॉम द स्काई, और जो बारिश अल्लाह जो आसमान से भेजता है. एंड इन द चेंज ऑफ द विंड्स एंड द क्लाउड प्रेस्ड इनटू द सर्विस बिटवीन द हेवंस एंड द अर्थ, और अल्लाह ताला ने हवा बनाए, क्लाउड प्रेस्ड इनटू द सर्विस, मतलब जो बादल है उसको आसमान और दुनिया के बीच में बनाए. आर इंडीड द साइंस ऑफ पीपल हु अंडरस्टैंड, ये सब साइंस अल्लाह ने दिए जो कि लोग ईमानदार है वो समझ सके. जो लोग अल्लाह पे भरोसा करते हैं वो अल्लाह को असली में मान सके. सूरह अल-बकरा आयत नंबर 164 है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं जाके, यू कैन रीड इट. अल्लाह इज़ वन एंड ओनली, Allah is one and only, nothing resembles him, nothing in the universe affects him in any way. He is ever living and sustains that all exists. Mind cannot perceive him, nor can imagination can picture him. His greatness and glory can be known through the intellect of reflection in whatever he has created. Allah एक है और अकेला है. नथिंग रिसेम्बल्स हिम, कुछ भी अल्लाह ताला को फ़ायदा और नुकसान नहीं पहुंचाता. नथिंग इन द यूनिवर्स अफेक्ट हिम, मतलब जो पूरी कायनात है उसमें कुछ भी हो लेकिन वो अल्लाह ताला को फ़र्क नहीं पड़ता. ही इज़ एवर लिविंग, अल्लाह जो है जो हमेशा रहता है, नहीं कभी मरता है. एंड सस्टेन दैट ऑल एक्सिस्ट, सब अल्लाह के नाम पे है. माइंड कैन नॉट परसीव हिम, दिमाग उसके बारे में सोच नहीं सकते, और ना ही इसके दिमाग अल्लाह ताला के बारे में अपन दिमाग में पिक्चर बना सकते. हिज ग्रेटनेस एंड ग्लोरी, अल्लाह पाक की जो ऊंचाई है उसको नोन टू इंटेलेक्ट रिफ्लेक्शन वॉट एवर ही हैज़ क्रिएटेड. अभी चलते हैं, आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे. ही इज़ द लॉर्ड हु क्रिएट्स एंड प्रोवाइड्स सस्टेनेंस, ही गिव्स लाइफ एंड कॉजेस डेथ, alters day and night, and raises people to grades and degrades others who deserve such degradation. Whatever he wills definitely occurs exactly as he wishes it to be. He sees everything and hears everything all at the same time. He has the knowledge of everything, and whether the secret or open. He is the supreme Lord and the master in this world and in the hereafter. So इसका ट्रांसलेशन हिंदी में है कि अल्लाह जो है वो अपने लॉर्ड है जो आप उनको बनाते हैं और आप उनको ज़िंदा करते हैं.
वो ज़िंदगी भी देते हैं और मौत भी देते हैं, वो दिन भी करते हैं रात भी करते हैं। और लोगों को ऐसा मतलब जो लोग गरीब हैं उनको अमीर बना देते हैं और जो लोग अमीर हैं उनको गरीब बना देते हैं, मतलब अल्लाह ताला उनकी आजमाइश करते हैं। दो लोग डिग्रेडेशन चाहते मतलब जो लोग डिज़र्व करते हैं नीचे जाना तो अल्लाह उनको नीचे करते हैं। वॉट एवर ही विल, जो भी अल्लाह ताला चाहते हैं डेफिनेटली अकर्स एग्जैक्टली, जो भी अल्लाह चाहते हैं वो एग्जैक्टली वैसे होते, नहीं कुछ ऊपर नहीं कुछ नीचे। ही सीज एवरीथिंग एंड हियर एवरीथिंग एट ऑल टाइम सेम टाइम। अल्लाह ताला सब देखते हैं और सब सुनते हैं एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे। अल्लाह ताला को हर चीज़ की नॉलेज है, जबकि वो सीक्रेट हो या ओपन हो। ही इज़ द सुप्रीम लॉर्ड एंड द मास्टर इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह ताला जो है वो हमारे क्या बोलते हैं लॉर्ड है और मास्टर है और ये दुनिया में और आखिरत की दुनिया में। ही हैज़ पावर ओवर एवरीथिंग एंड हिज मर्सी extends to everyone and everything. His bounties reach every living creature. He forgives the sin of those who return to him and answers the prayer of those who pray to him. He gives sustenance to the needy and knowledge to the ignorant. He guides the perplexed, feeds the hungry, and gives the drink to the thirsty, clothes the naked, and relieves the distress of the distressed. He has given us all that we want from him, and even if we try to count the favors he has bestowed upon us, we will not be able to number them. He shelters us, accepts us our repentance, supports the wronged, and punishes the oppressors and the tyrants. So the translation is that his power, अल्लाह ताला की जो पावर है वो सब पे है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं और जो भी अपने से पहले जितने भी लोग थे, अल्लाह ताला की पावर उन सब पर है। और उनकी जो मर्जी है, जो अल्लाह ताला की रहमत है, वो हर क्या बोलते हैं हर इंसान को, हर लिविंग थिंग को पहुँचता है। हिज बॉन्टीज रीचेस ओवर एवरी लिविंग क्रिएचर, चाहे वो जानवर भी क्यों ना हो, इंसान हो, अल्लाह ताला की जो रहमत है वो सब पे पहुँचती है। ही फॉरगिव्स द सिन्स दोज़ हू कम टू हिम, जो लोग अल्लाह की तरफ वापस मुड़ जाते हैं गलत रास्ते पे, मतलब जो लोग कन्वर्ट कर जाते हैं इस्लाम पे, अल्लाह ताला उनके गुनाह को माफ़ भी कर देता है। और अल्लाह ताला उनके जो अपन इबादत करते हैं, अल्लाह की कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसका जवाब भी देते हैं अपन को, जैसे कि सवाब देते हैं अल्लाह ताला। ही गिव सस्टेनेंस टू द नीडी, जो लोग गरीब अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं। नॉलेज टू द इग्नोरेंट, और नॉलेज जो लोग इग्नोरेंट है उनको अल्लाह ताला नॉलेज भी देते हैं। ही गाइड्स द परप्लेक्स, जो लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं अल्लाह ताला उनको सही रास्ते पे लाते हैं। फीड द हंग्री, भूखे लोगों को खिलाते भी है। गिव ड्रिंक टू द थर्स्टी, प्यासे लोगों को पानी पिलाते हैं। और क्लोथ टू द नेक्ड, अल्लाह ताला कपड़े भी देते हैं। और जो लोग अपने ऊपर स्ट्रेस रहता है अल्लाह ताला उसको रिलीफ भी करते हैं। ही हैज़ गिवन अस ऑल डैट वी वांट फॉर हिम, अल्लाह ताला ने हमको वह सब दिया है जो हमको उनसे चाहिए। एंड इवन इफ वी ट्राई टू काउंट हिज फेवर, अगर अपन गिनने की भी कोशिश करें तो इतने ज़्यादा है कि अपन उसको काउंट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमको घर देते हैं, हमारी जो रिपेंटेंस है उसको मानते हैं, दुआ नमाज कुरान जो अपन पढ़ते हैं। सपोर्ट द रॉन्ग, जो लोग रहते हैं उनको अल्लाह ताला सपोर्ट करते हैं। और जो लोग नहीं सुनते तो अल्लाह ताला फिर उनको उनका अज़ाब देते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। He gives security to the fearful, honors whomever he wills, and brings disgrace upon whomever he wills. He is the ever free from want. He spends by day and night, and nothing diminishes him. His unlimited treasures. All the affairs of the universe and beyond go according to his decree and will. He alone is the Lord and the Master who truly deserves to be worshipped, and he hath no partners whatsoever. He is our Lord and the Lord of everything. He is the Lord of the heavens and the Lord of the earth and the Lord of the great throne. तो गाइस इसका मीनिंग है, जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं अल्लाह ताला उनको सिक्योरिटी भी देते हैं। ऑनर्स मतलब जिसको भी अल्लाह ताला चाहे उसको अल्लाह ताला इनाम भी देते हैं, और जिसके ऊपर चाहे तो अल्लाह ताला उनकी रहमत हटा भी सकते हैं। ही इज़ द एवर फ्री, जो अल्लाह ताला चाहे वो कर सकते हैं।
ही स्पेंड बाय द डे एंड नाइट। अल्लाह ताला दिन रात खर्च करे तो भी उनका जो खजाना है वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड है, मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला खजाना। ऑल द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्स, अल्लाह ताला की जो मतलब ये जो दुनिया में जो भी चल रहा है यूनिवर्स में, वो सब अल्लाह ताला देखते हैं। He alone is the Lord and the Master who truly deserve to be worshipped। अल्लाह ताला एक ही अकेले लॉर्ड है जिनको वर्शिप करी जानी चाहिए। He has no partner, अल्लाह ताला के कोई भी साथी नहीं है। He is our Lord, अल्लाह ताला हमारे लॉर्ड है। एंड लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, कायनात में जो भी है वो सब अल्लाह ताला का है। He is the Lord of the heavens, अल्लाह ताला पूरे जो आसमान है उनके भी रब है, जो अर्थ है अपनी धरती उसकी भी रब है, और जो अल्लाह ताला की ग्रेट थ्रोन है उसकी भी अल्लाह ही रब है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नाउ लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑलमाइटी अल्लाह हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल नेम्स एंड द लॉफ्टीएस्ट एट्रीब्यूट्स। वी मस्ट अफर्म एंड बिलीव इन हिज एट्रीब्यूट्स without distorting their obvious meaning and claiming that they mean something other than which is reported in the Quran or the Sunnah, denying their meaning altogether or likening to any of those of his creatures. Allah says in the Quran, there is nothing like him, and he is the all-hearer and the all-seer। सूरह शुरा 40-11। और अल्लाह ताला कुरान में ये भी कहते हैं, एंड ऑल ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेम्स बिलोंग टू अल्लाह, सो कॉल ऑन हिम बाय देम। सूरह अल-आराफ 7:180। तो इसकी मीनिंग, जो अल्लाह ताला है उनकी सबसे अच्छे नाम है और सबसे बेस्ट क्वालिटीज़ है जो कि इस कायनात में किसी के पास नहीं। हमें मानना चाहिए कि अल्लाह ताला के पास ये सब क्वालिटीज़ है जो कि अल्लाह ताला के नाम में है, और उनकी मीनिंग तो बिना ही ख़राब करे, क्लेमिंग दैट मीन अदर विच इज़ रिपोर्टेड इन द कुरान। जो लोग जो भी अल्लाह ताला के नाम में कुरान में या सुन्नत के सिवा किसी और में, तो मतलब वो गलत है। डिनाइंग देयर मीनिंग ऑल टुगेदर, जो लोग अल्लाह की मीनिंग डिनाई करते हैं, और लाइकनिंग हिम ऑफ एनी दोज ऑफ हिज क्रिएचर्स। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अल्लाह ताला की जैसा कुछ भी नहीं, वो सब सुनते हैं और सब देखते हैं। सूरह शुरा 40-11। और अल्लाह ताला ये भी कहता है, एंड ऑल द मोस्ट ब्यूटीफुल नेम्स बिलोंग टू अल्लाह, सो कॉल ऑन हिम बाय देम। इस दुनिया में जितने भी अच्छे नाम हैं, जैसे अल्लाह ताला के 99 नेम्स, वो सब अल्लाह के हैं, तो अल्लाह ताला को उन अच्छे नामों से बुलाओ। His hearing encompasses all voice, yet his voice do not blend into one another. He hears every single voice। मतलब जो लोग जितने भी दुनिया में एक साथ लोग बात करते हैं, अल्लाह ताला वो सब सुनते बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब करे। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो दुनिया में कोई और भी बात कर रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला को अपनी जो आवाज़ है वो एकदम क्लियर सुनाई देती है बिना कोई इंटरप्ट के। तो अब याद आता है अपन गाइस अपने लास्ट पेज पे। ठीक है, तो इधर अपन पहले ये 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर ये 3 साथ में पढ़ेंगे। First we will read these 2 paragraphs, then these 3 paragraphs with translation in Hindi. So let us begin. He hears and understands all the various tongues which are distinct in their countless applications. One application does not distract him from another. The countless petition of this creature do not confuse him। जो पहले इसमें तो वही है, मतलब अल्लाह ताला सारे लैंग्वेजेस को समझते हैं। काउंटलेस एप्लीकेशन डज नॉट डिस्ट्रैक्ट हिम। और अब जब अपन बात करते हैं, कोई और बात करता है दुनिया में, तो अल्लाह ताला को जिसकी भी आवाज़ हो एकदम क्लियर सुनाई देती है, इंटरप्ट नहीं होती। His sight envelops everything, he sees absolutely everything. The hidden for him is visible, and the secret for him is open. He knows what is the secret and what is even more hidden. He knows what is in a person's mind or conceived in his heart, even though when it is not uttered by his lips. He knows the treasury of the eyes and what the breasts conceal. To Allah belong the creation and the command. To him alone belongs this world and the next. In his hand is all good, and to him return all affairs.
His power and mercy encompass all the things. His grace extends over every living thing. He is the truth, and that which people call him upon them, then him is certainly falsehood. जो अल्लाह ताला की साइट है वह सब देखते हैं. He sees absolutely. अल्लाह ताला बेशक सब कुछ देखते हैं. जो लोग छुपा के रखते हैं प्राइवेसी में, लेकिन वो अल्लाह ताला को दिखता है. और जो लोग अपने लिए सीक्रेट है वो अल्लाह ताला के लिए खुला है. और अल्लाह ताला को पता है कि सीक्रेट क्या है, और वो सीक्रेट का भी सीक्रेट अल्लाह को पता है क्या है. ही नोज व्हाट इज़ इन द पर्सन माइंड. अल्लाह को मालूम है कि लोगों के दिमाग में क्या है, उसके दिल में क्या चल रहा है, जबकि उन्होंने उनके मुँह से बोले भी नहीं. अल्लाह ताला सब जानते हैं. तो अल्लाह बिलोंग द क्रिएशन एंड द कमांड. ये सब जो अल्लाह ताला ने अपन को बनाया क्रिएशन और जो अल्लाह ताला कमांड देते हैं वो सब अल्लाह की ही है. तो ही मालूम बिलोंग दिस वर्ल्ड एंड नेक्स्ट. ये जो दुनिया है और जो आखिरत की दुनिया है ये सब अल्लाह ताला को बिलोंग करती है. इन हिज हैंड्स इज ऑल गुड एंड टू हिम रिटर्न अफेयर्स. अल्लाह ताला के हाथ में जो है वो सब अच्छा ही है और उनको ही वापस सब ये जाता है. हिज पावर एंड मर्सी इनकम्पास ओवर ऑल थिंग. अल्लाह ताला की जो पावर है और जो मर्सी और रहमत है वो पूरे उस पर जाती है, सारे चीज़ों पे. ही इज ग्रेस एक्सटेंड ओवर ऑल लिविंग थिंग. अल्लाह ताला की जो रहमत है वो हर लिविंग बीइंग पे जाते हैं. ही इज द ट्रूथ. अल्लाह ताला सच है. एंड दैट विच पीपल कॉल अपॉन देन हिम इज सर्टेनली फॉल्सहुड. लेकिन जो लोग नहीं मानते वो गलत रास्ते पे चलते हैं. Everything will perish except him. Every kingdom will come to end except his kingdom. Every sheltering will shade except his will be withdrawn. When he is obeyed, he bestows his mercy. When he is disobeyed, he overlooks and excuses sins. जो सब है वो सब अल्लाह, मतलब जिस दिन क़यामत आएगी उस दिन सब लोग मर जाएंगे लेकिन अल्लाह ताला अकेले जिंदा रहेंगे. एवरी किंगडम, जितने भी किंगडम आए हैं पहले वो सब एक टाइम पे ख़त्म हो गए, लेकिन अल्लाह ताला का किंगडम एवर लिविंग है. एवरी शेल्टरिंग शेड एक्सेप्ट हिज विल बी विड्रॉन. क़यामत के दिन सबके घर ख़त्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला के घर नहीं ख़त्म होगा. मैंने ही तो जब अल्लाह ताला को माना जाता है, अल्लाह ताला की बात सुनी जाती है, नमाज़ पढ़ी जाती है, तो अल्लाह ताला उनकी रहमत अपने ऊपर भेजते हैं. और जब अल्लाह ताला को डिसोबे किया जाता है, अल्लाह ताला की बात नहीं मानी जाती है, तो अल्लाह ताला उसको पीछे देखते हैं और उसके बहाने को एक्सक्यूज़ कर देते हैं. Therefore, we should fear none but Allah, rely on none but Allah, and hope for no one's mercy except for His mercy. इसके लिए हमें किसी से नहीं डरना चाहिए लेकिन अल्लाह पे. किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए लेकिन अल्लाह पे. किसी की रहमत के नहीं कि आप हमको ऐसा कर दो, नहीं, खाली अल्लाह के लिए रहमत की दुआ करने का है. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. I hope friends you like this video of this Islamic studies book, and if you want more details about this book, here you can see the ad. So and Gmail also, and here you can see the price of this book is 300 rupees. And if you want more knowledge, comment below this video. Inshallah we will continue our next lesson, that is that is at-tayammum, the symbolic ablation using the earth for purification. So inshallah this we will do in next video, and let me show you about the content also. Here are the content we have finished first, and inshallah we will finish all of this. So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Till then, goodbye. Assalamu alaikum. Take care.